اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ عالمی جنگ کے بعد دنیا کو خطرناک ترین دہائی کا سامنا ہے، پوٹن۔ ایلن مسک نے ٹویٹر خرید لیا۔ سی ای او پارگ اگروال اور دیگر اعلیٰ سطحی عہدیداروں کو برطرف کر دیا۔ ایک ملک ایک پولیس یونیفارم، مودی کی تجویز۔ پنجاب کی بین الاقوامی سرحد پر ہتھیاروں کا ذخیرہ برآمد۔ دولت کے بلبوتے پر تلنگانہ میں بی جے پی کا شرمناک کھیل، کمار سوامی۔ کرناٹک لنگایت مٹ جنسی اسکینڈل، ملزم پجاری کے خلاف 694 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل۔ اعظم خان کی اسمبلی رکنیت کو منسوخ کر دیا گیا، اب وہ اتر پردیش اسمبلی کے رکن نہیں رہے۔ انکم ٹیکس کی ادائیگی ہر ایک کی ذمہ داری۔ انکم ٹیکس پرنسپل کمشنر درگیش سامرت۔ ہمارے نمائندے جیلانی بادشاہ کی رپورٹ۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش نے سکریٹریٹ میں اقلیتی اداروں کے سربراہان و سرکاری عملے کا جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ ضلع کڑپا میں 3 کسانوں کی برقی لگنے سے موت۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ عالمی جنگ کے بعد دنیا کو خطرناک ترین دہائی کا سامنا ہے، پوٹن۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے 27 اکتوبر جمعرات کے روز اپنے ایک خطاب میں یوکرین پر روسی حملے کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ چونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی اشرافیہ کے عالمی تسلط کے ناگزیر زوال کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کو سب سے خطرناک عشرے کا سامنا ہے۔ روسی صدر نے امریکہ پر یوکرین کے تنازع کو بھڑکانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مغرب ایسا خطرناک، خونی اور گندا جیو پولیٹیکل گیم کھیل رہا ہے جو پوری دنیا میں افراتفری کا بیج بونے کا باعث بن رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بالآخر دنیا کے مستقبل کے بارے میں مغرب کو روس اور دیگر بڑی طاقتوں سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ روسی صدر پوٹن بین الاقوامی پالیسی ماہرین پر مشتمل سالانہ والڈائی ڈسکشن کلب کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب عالمی امور پر مغرب کے غیر منقسم تسلط کا تاریخی دور ختم ہونے والا ہے۔ ایلن مسک نے ٹویٹر خرید لیا۔ سی ای او پارگ اگروال اور دیگر اعلیٰ سطحی عہدیداروں کو برطرف کر دیا۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلن مسک نے جمعرات کو ٹویٹر خرید لیا۔ چند گھنٹے بعد سی ای او پارگ اگروال کو ہٹا دیا گیا۔ ان کے ساتھ 2 اور افسران، چیف فائنینشل آفیسر اور قانونی امور اور پالیسی چیف وجے گرڈے کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے۔ مسک نے ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جعلی اکاؤنٹس کی تعداد کے بارے میں انہیں ٹویٹر کے سرمایہ کاروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مسک نے ٹویٹر کے ساتھ معاہدے کی بہت سی وجوہات بتائی ہیں۔ مسک نے اشارہ دیا کہ مستقبل میں ٹویٹر کی اشتہاری پالیسی میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ مسک نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹویٹر بہترین اشتہاری پلیٹ فارم ہو جہاں ہر عمر کے صارفین فلمیں دیکھ سکیں یا ویڈیو گیمز کھیل سکیں۔ مسک کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹویٹر سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت۔ ایک ملک ایک پولیس یونیفارم، مودی کی تجویز۔ مودی نے کہا کہ خوف اور دہشت سے پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے تمام ریاستوں کی پولیس اور متعلقہ ایجنسیوں کو سماج دشمن طاقتوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی ہوگی اور اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام ریاستوں کی پولیس میں یکسانیت لانے، انہیں ایک مشترکہ شناخت دینے اور ان کی طاقت کو متحد کرنے کے لیے ایک قوم ایک راشن کارڈ کی طرز پر ایک قوم ایک پولیس یونیفارم شروع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ون نیشن ون سائن لینگویج بنی ہے، ویسے ہی
पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है? क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी। बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। पंजाब की बैनुल अक़वामी सरहद पर हथियारों का जखीरा बरामद। बीएसएफ के ताल्लुकात आम्मा के अफसर ने आज यहां बताया कि जुमेरात की शाम बीओपी जगदीश में तैनात बीएसएफ की 136 बटालियन के एहलकारों ने सरहद पर जीरो लाइन के करीब तलाशी के दौरान एक बैग बरामद किया। पंजाब को दहशत ज़दा करने की साजिश को एक बार फिर नाकाम बनाते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने फैरोजपुर सेक्टर में असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें 6 खाली मैगजीन समेत 3 AK-47, 5 खाली मैगजीन के साथ 3 मिनी AK-47, 6 खाली मैगजीन के साथ 3 पिस्तौल और 200 राउंड गोला बारूद बरामद हुए। मजीद कार्रवाई के लिए पंजाब पुलिस को आगाह कर दिया गया है। दौलत के बलबूते पर तेलंगाना में बीजेपी का शर्मनाक खेल। कुमार स्वामी। तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से खेले गए मुजरिमाना खेल पर मोदी की खामोशी को माना खैज करार देते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि इस मामले को ईडी के सुपुर्द किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी खामोशी इख्तियार करते हुए इस मामले से बच नहीं सकते। साबिक वजीर आला कर्नाटक HD कुमार स्वामी ने कहा कि TRS के 4 अरकान मुकन्नना को बीजेपी की जानिब से खरीदने की कोशिश पर वजीर आजम को लबकुशाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से TRS अरकान असम्बली की वफादारियां तब्दील करने की कोशिश पर उन्हें कोई ताज्जुब नहीं हुआ है। दौलत के बलबूते पर कर्नाटक में हुकूमत गिरा दी गई और गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा ऐसी ही दौलत से दूसरी रियासतों में हुकूमतों को गिरा दिया गया। ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು, ಅದೇ ಕೆಲಸ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಹಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಣ ಮೌನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಆಪರೇಷನ್ कर्नाटक लिंगायत मुठ जिनसी स्कैंडल। मुलजिम पुजारी के खिलाफ 694 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल। मज़कूरा कर्नाटक पुलिस ने 694 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट असमत रेजी के मुलजिम पुजारी शिवा मूर्ति मोरघा शारा नारो के खिलाफ मकामी अदालत में दायर की है। जुमा के रोज पुलिस ज़राए ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस ज़राए के बमूजब जबकि ये एक अबूरी चार्जशीट है और एक तफसीली चार्जशीट भी दायर की जाएगी क्योंकि तहकीकात अभी जारी हैं। तहकीकाती ऑफिसर की जानिब से दायर करदा मज़कूरा चार्जशीट असमत रेसी के मुलजिम के खिलाफ 347 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें दूसरे मुलजिम लेडीज हॉस्टल वार्डन रश्मि और चौथे मुलजिम मुठ के सेक्रेटरी प्रामा होया के खिलाफ भी इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। आजम खान की असम्बली रुकनीत को मनसूख कर दिया गया, अब वो उत्तर प्रदेश असम्बली के रुकन नहीं रहे। स्पीकर के दफ्तर के एक बयान में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के रहनुमा और रामपुर के MLA आजम खान को आज उत्तर प्रदेश कानून साज असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल करार दे दिया गया है और उनकी रुकनीत को मनसूख कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि आजम खान को नफरत अंगेज तकारीर केस में कसूरवार ठहराया गया है और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है।
मिलक में इन्होंने एक भाषण दिया था, तो उसमें एक FIR दर्ज हुई थी इनके खिलाफ 153, 505 और 125, और सब एविडेंस और क्रॉस होने के बाद फाइनल हियरिंग हुई। आज कोर्ट ने जो है इनको 3 साल की, तीनों धाराओं में 3 साल की सजा सुना। हाँ, 25,000 रुपए का जुर्माना भी हटा। इनकम टैक्स की अदायगी हर एक की जिम्मेदारी। इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर दुर्गेश सामरत। हमारे नुमाइंदे जिलानी बादशाह की रिपोर्ट। आज कड़पा में वाक़े मनसा इन होटल में ज़िला भर के व्यापारियों की मुख्तलिफ एसोसिएशंस और इनकम टैक्स ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इनकम टैक्स कानून पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़े व्यापारियों के अलावा इनकम टैक्स ऑडिटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए दुर्गेश सामरट ने कहा कि व्यापारियों को दरपेश मसाइल से वाकिफियत के बाद उन्हें हल किया जाएगा, इसलिए ये इजलास मुनक्किद किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो व्यापारी कर रहे हैं वो तमाम तफसीलात उन्हें बैंकों से मालूम हो रही है, इसलिए हर एक व्यापारी को इनकम टैक्स अदा करना होगा। इस मौके पर आंध्र प्रदेश इनकम टैक्स एंड कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदर पठान शरीफ खान ने कहा कि मौजूदा हालात में कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से मुनाफा कम हासिल हो रहा है, इसलिए व्यापारी परेशानियों का शिकार हैं। ऐसे हालात में टैक्स अदा करने में मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने इनकम टैक्स ओहदेदारों से व्यापारियों को दरपेश मसाइल हल करने की ख्वाहिश की। जिला कड़पा में 3 किसानों की बरकी लगने से मौत। हमारे नुमाइंदे जिलानी बादशाह की रिपोर्ट। जिला कड़पा के चापाड़ू मंडल के मौजू चापाड़ू में आज 3 किसान उस वक्त बरकी लगने से हलाक हो गए जब वो अपने खेतों में जरासीम कशी अद्वियात छिड़क रहे थे। तीनों की बरसरे मौका ही मौत वाक़ई हो गई। पहले खेत में काम करते वक्त एक किसान को करंट शॉक लगा जो बरसरे मौका ही हलाक हो गया, जिसे बचाने की जिद्दोजहद में दूसरे 2 अफराद भी हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वकूफ़ पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल को रवाना किया। केस दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश ने सेक्रेटरीट में अक़लियती इदारों के सरबराहां व सरकारी अमले का जायज़ा इजलास की सदारत की। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह ने आज विजयवाड़ा में वाक़े AP सेक्रेटरीट में अक़लियती इदारों, AP स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी और हज हाउस के चेयरमैन के साथ जायज़े इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान को सरकारी सतह पर नाफिज करने के इक़दामात का जायज़ा लिया जाए और इस सिलसिले में सरकारी ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दिए। हज 2023 के ताल्लुक़ से जामे मंसूबे पर तबादुल ख़याल किया गया और ज़रूरी हिदायत दिए गए। हज 2023 के ताल्लुक़ से एम्बार्केशन पॉइंट पर तबादुल ख़याल किया गया। अक़लियतों को तालीम और रोज़गार के मौक़ों पर ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी गई। 2022 के आखिर तक 109 क्रिश्चियन ज़ायरीन को यरूशलेम भेजने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी गई। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।